بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن کا بیٹا شہر میں پڑھنے آیا تو میں نے اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی۔ شوہر ملک سے باہر تھا۔ میری بہن کا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے دودھ کے ساتھ دوا کھلا کر چلا جاتا اور جب صبح ہوتی تو مجھے وہ سکون ہوتا۔ ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تم تو حاملہ ہو گئی ہو۔ تو میری جان نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آ گرا۔ ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر رپورٹ میرے سامنے رکھ دی تو کہنے لگی 3 سال سے تو آپ علاج کروا رہی ہیں، آپ کو مجھ سے یقین سے کام لینا چاہیے۔ میں اپنی رپورٹ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں اچانک ایسا موڑ آ جائے گا۔ میں تو سن کر ہی چکرا گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہ کہا اور باہر آ گئی۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور ماں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر سے کلینک کا راستہ بس ایک ہی گلی کا تھا، لیکن مجھے اپنے قدم اتنے بھاری لگ رہے تھے جیسے میرے کندھوں پر کوئی بھاری بوجھ پڑ چکا ہو، اور کوئی نہ تھا گھر میں، ایک ماجد اور دوسری میں۔ میرا ذہن مکمل طور پر سوچنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ سوچتی کیسے؟ سوچتی ماجد میری بڑی بہن کا بیٹا اپنی سوچ کے تانے بانے بھی سمیٹ نہیں پائی تھی۔ اپنا گھر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ کہنے لگا خالہ آج آپ نے اتنی دیر کر دی۔ میں نے پہلے تو آپ کا کھانے پر بہت انتظار کیا، لیکن پھر مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ میری سب سے بڑی بہن کا بیٹا مجھے ہمیشہ سے عزیز ہے، جو کہ جاب کے سلسلے میں شہر آ گیا تھا، وہاں سے یہاں میرے پاس رہا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا شوہر میرے کزن بھی تھے اس رشتے سے، اور ماجد سے بھی بے تکلف تھے۔ ان کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے، انہیں میری فکر نہیں ہوگی۔ ماجد بولا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں ماجد سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی رپورٹ دراز میں رکھی اور اپنے بے جان وجود لیے بیٹھ گئی۔ مجھے مظہر کے نام سے بھی بہت تنگ کرتا تھا۔ کہتا تھا آپ اتنی خوبصورت ہیں، اور وہ یہ لمبے چوڑے گبرو جوان سے، اوپر سے ہے بھی بڑے غصے والے، آپ کے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کریں گے، آپ کے لیے تو مجھ جیسا لڑکا اچھا لگے گا۔ ہر وقت مجھے مظہر کے حوالے سے مذاق کرتا تھا۔ میں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی۔ جو یہاں رہتا مجھ سے رات دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا، ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا۔ اب بھی یہی کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ مظہر انکل نے پردیس میں کسی سے شادی کر لی ہے، تبھی تو واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ جب میں اسے ہنسنے لگتا، اسے دیکھ کر کبھی مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی، اور ماجد میرے دروازے پر دستک دے کر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن تھی۔ وہ بڑے نرم انداز میں میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن اس پر بیٹھتے ہی مجھے پیچھے ہٹ گئی، جیسے نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ جو کچھ بھی ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی، میری جگہ کوئی بھی اس وقت ایسے ہی خوف کھاتا۔ وہ مجھے یوں خوف زدہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے تو بالکل جگانے کے لیے نہ، میں سونا چاہتی ہوں۔ میرے لہجے کے سامنے وہ چپ تھا اور
उठकर कमरे से दरवाजे से चला गया। खाना भी नहीं खाया हुआ आपने मुझे दोबारा से दूध पीने की ताकीद करके वो कमरे से बाहर चला गया। और ये कौन सा खेल मेरे साथ खेल रहा था। धीरे से जब इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। वो तो मैंने इसका दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। और जब मैं अपने कमरे में आ गई, ज़हन वाक़यात गुजरने लगे। जब पापा का फ़ोन आया था, कहने लगी मैं नौकरी करना चाहता हूँ, इस हालत में नहीं कि इसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं। मेरा माजिद सीधा साधा सा है कि गलत लोगों में सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। ये हमने कैसे माजिद की तरबियत की है। मेरा बच्चा तहज्जुद गुजार है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हों वहाँ अय्याशियाँ भी होती हैं। इसलिए कि अपने घर में रखते हुए हामी बढ़ ली थी कि माजिद मेरा भांजा ही नहीं, बेटा भी है। वो मेरा सगा भांजा था और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्योंकि माजिद किस किस्म का शख्स है। लेकिन मैंने सोचा माजिद को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कहीं और कर ले, इसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। इसे तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि इसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था, जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था। शायद इसकी तलब ना पूरी होने की वजह से हुई हो। मुझसे बात कर रहा था। गुस्से में मैंने कहा तुम होते कौन हो। मुझसे पूछने वाले भी बुलंद और सख्त लहजे को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम लहजे में बोला, खाला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फ़िक्र थी। दस्तक दे रहा था, लेकिन आपने दरवाज़ा जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, इसलिए मैं परेशान हो गया था। इसको गुस्सा आया। मैंने कहा मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तलख लहजे में कहा, और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपनी पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। और वो इस वक्त मेरी उम्र की ख़त्म रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरी मियाँ मेहरून मलक जाते, अक्सर ही मुझे सौदा मंगवा लिया करती थी। लेकिन जब से माजिद था, मैं हर काम माजिद से कहती थी। इस वक्त मुझे अपनी पड़ोसी पर यकीन था कि मुझे ये काम ख़त्म करवाना था। मेरे मियाँ 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि शाहिदा से कहूँ क्या, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। लेकिन मुझे किसी न किसी को एतमाद में लेना था। मुझे ये कदम उठाना ही था। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी रूह तरसती रह गई। मैं माजिद को मज़ीद अपने घर पर नहीं रख सकती। खाला क्या कह रही हैं, मैं क्यों आपको छोड़ कर जाऊँगा। मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी। मुझे माजिद के लिए फ़िक्रमंदी भी हो रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रही थी, बहरहाल अपना इंतज़ाम कर लो। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं सो रही थी, मेरा कमरा लॉक। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैंने इनकी ज़िंदगी में जाने लगी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रही थी। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कुछ हो रहा है। कमरे में बहुत अंधेरा था, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। मेरे बराबर के सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। अंधेरा के मैं इस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़ारा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना समझा तो मैं चिल्लाने लगी। इस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा शौहर था। मज़हर कब आ गए थे, वो भी बिना किसी पेश की इतला के यहाँ अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरफराज देना चाहता था। जब मैं घर पहुँचा तो माजी ने दरवाज़ा खोला।
जी तुम भी। इसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी, इसलिए कि मंजर के साथ मिलकर मैं बेतहाशा होने लगी। वो तो मुझे रोता देखकर समझे कि इनकी वजह से उदास हो गई हूँ, इसलिए इन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीतती है। वो मुझे तसल्ली दे रहे। अच्छा तो मज़र भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन मज़र की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। बहुत परेशान। वो खाना अब टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुरा कर कहने लगा, खाना कैसा लगा? आपको अंकल का आना इस वजह से इसे नफरत से देखा होगा कि किस कदर ढीठ ड्रामेबाज हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती? तुम एक तरफ खाना कहते हो और दूसरी तरफ राह से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। वो आज टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट इसके मुंह पर मार दी, जो कि इसके चेहरे से टकरा कर ज़मीन पर गिर गई, और कहा, ये पढ़ो और अपना चेहरा लेकर इतने से पहले दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैंने कहा। जैसे ही इसने कहा तो इसके चेहरे की रंगत में चेहरे पर बदहवासी से छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मदर दे और इसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। इन्हें देखकर तो मेरी जान निकल गई। मेरी जान तन से जुदा हो गई। ये मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं पूरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। भूल गई थी, मदर देख रहे थे। मेरी तो रूह गुनाह हो गई थी। वो आज भी वहीं खड़ा था। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ इल्म नहीं है। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी। मैं बिस्तर पर लेटते लेटते हाथ जोड़े मदर से माफ़ी मांगती थी। वो मेरे पास आए हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट दोबारा करवाए हैं तो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना माजिद ने ऐसा कुछ किया है। तुम इसके किरदार पर चेक मत करो, बस कलर रिपोर्ट के अदल बदल से हुआ है। ये सब गलत फहमी है। माजी की तरफ मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठा कर नहीं देखा, तो आप मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे के सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता था, कभी कभार सिगरेट ज़रूर पीता हूँ। आपका ख्याल रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए मैं अपनी अम्मी के लिए खाने पीने और दुआ का ख्याल रखता था। आपको मेरी वजह से इस कदर अजियत का सामना था तो कभी यहाँ आता ही नहीं। वो रो रो कर अपनी बातों की वजाहत दे रहा था। एक रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या क्या मैंने अपने भांजे के ख़िलाफ़ नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मेरे गुमान में ये भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट गलत निकल आती है। अब सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा लेती तो ऐसा कभी ना होता।